गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, wherever you are, आप सबका बहुत स्वागत है इन ब्रूटली ऑनेस्ट विद वीआरए। ऑल ऑफ यू नो दैट आई ट्रैवल अ लॉट। मैं हर समय ट्रैवल करता रहता हूँ। मैं कई ट्रैवल पे व्लॉग्स भी बनाता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, कई बार लिख भी देता हूँ, बट दैट इज जस्ट एज अ हॉबी। It's very rare to meet a professional traveler who earns bread and butter out of traveling. आप कई लोगों से मिले होंगे दुनिया में जो बहुत ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं, ट्रैवल के ऊपर दुनिया भर की वीडियोस भी बनाते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, पर very rarely you'll find somebody who has changed the entire perspective about traveling in this country. So let me first welcome Anuradha. Hi Anuradha, कैसी हैं आप? Namaste and hi, Vivek. Good to see you after a long time, virtually, even though. I'm very fine and I hope all is good at your end. तो द रीजन यू आर हियर इज क्योंकि मैं ये लॉकडाउन में मेरे पास एक बुक आई है। वेयर इज योर कॉपी? लोटस इन द स्टोन। या नाउ लोटस इन द स्टोन तो मैंने अनुराधा की बुक थी, कुछ पेजेस फ्लिप किए एंड आई जस्ट पुट इट ऑन माय शेल्फ। मैंने कभी मौका लगेगा तो पढ़ूंगा। अभी फ्यू डेज अगो आई वाज लुकिंग थ्रू सम अदर बुक्स एंड आई पिक्ड इट अप and I said अच्छा चलो देखें तो क्या है, what she has done. Now lockdown is going, maybe I'll start traveling again, maybe there are going to be some inputs. And I saw there are the first page when you read the first chapter is stepping out and it starts with a shlok. तो मैंने कहा भाई ये कौन सा ट्रैवलर है जो श्लोक लोक से शुरू करता है अपनी बुक को। Then I started reading it. Actually I figured out, Anuradha, कि it's not actually a travelogue. This is a study of the consciousness of India, the Bharatiya consciousness, the DNA of our DNA and the memes, how they have carried over ages. You have actually reflected upon that. This book somewhere is a reflection on who we are, where have we come from, and where do we stand today. Now the problem is everybody in this world right now, in India especially, and especially after 2014, everybody is talking about who we were. Right. Nobody is talking about where we are. Right. You know, where do we stand today? And is that consciousness there? Can you become part of that consciousness? If you try, तो आपने इसमें एक रेंज पूरी कवर की है जो एक हिंदू फिलॉसफी है. And what I loved about this is, though you have spoken about Shakti and Vishnu and lots of religious places and temples and all, but your book is more about Hindu philosophy and not about Hindu religion per se. You know, so what is how did you come about this? Please share your travel experience with me. So, Vivek ji, this is basically my personal journey. That's what I've written in the first chapter also. You know, I was born in the 70s, grew up in 70s, 80s, started working in 90s post liberalization, worked in the big bad American companies, the biggest of software companies in India. And I studied science. My master's degree is in computer science. And हमारे यहाँ जब science पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका art, culture, history से कोई नाता नहीं है. You used to look down upon it. So this is my personal journey of discovering my own roots. एंड मुझे ये समझ में आया जैसे जैसे मैं ट्रैवल करती गई और आई रिटन दिस कि मेरी ट्रैवल शुरू तो वैसे ही हुई थी मनोरंजन के लिए, फॉर फन, एज अ लेजर एक्टिविटी, बट समवेयर इट स्टार्टेड गेटिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर, and it reached a point where I think I somewhere transformed into a pilgrim, where the title itself, that I was looking for stones, but what I discovered inside was a lotus which was waiting to be opened, to be, to be smelled, to be realized, to be found as much within as outside. So this is a very, very personal journey, but which I am now discovering through the reflections of my readers is pretty much a universal journey, probably a journey of our generation,
which was completely uprooted or which was completely disconnected from its own roots, and that's why we were wavering a lot. You know, कहीं से भी कोई भी हवा का झोंका आता था वो हमें उड़ा के ले जा सकता था और ले जाता था, ले जा रहा है। बट अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो हम हवाओं के साथ झूलेंगे तो, लेकिन खड़े वहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये एक कोशिश है अपनी जड़ों से जुड़ने की, या मेरी अपनी कहानी है अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने की और जुड़कर उसके साथ पनपने की, फलने की, फूलने की। पर मैं अनुराधा, I'll come to various chapters. I have lots of questions to ask, because it's so fascinating book. I love philosophy and I'm always into philosophical part of everything. And you have written a great book. पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आज कुछ ऐसा मैं देख रहा हूँ कि सब लोग जो है सिर्फ जड़ों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी जड़ों से जो वृक्ष आज दिख रहा है वो उन्हीं जड़ों से तो निकला हुआ है। तो ये जो वृक्ष आज सामने हमारे है, कोई उसके बारे में बात कर नहीं रहा है। जो अभी जो फल निकल रहे हैं, क्या वो फल अच्छे हैं, खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, कैसे खाद ज्यादा डालें, पानी डालें। तो ये जो हमारा पूरा हेरिटेज है, एवरीबडी इज बास्किंग इनटू द ग्लोरी ऑफ पास्ट कि अच्छा हमारा बहुत कमाल का ये था। मैं कई सारे टेम्पल्स में गया हूँ, कई सारी जगहों पे गया हूँ जहां पे शहर में ही लोगों को नहीं पता होता है, जहां रहते हैं उन्हीं को नहीं पता होता वो चीज एग्जिस्ट करती है। गंदी हालात में पड़े हुए हैं, मतलब यानी मैं कई ऐसी जगह गया हूँ जहां पे कचड़ा, फूल, फल, बंदर, बस यही है। यू कांट इवन एंटर। एक जगह मैं गया था हिमाचल में, ड्राइव करते हुए वी गॉट लॉस्ट। एक बार हम लोग ड्राइव कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त था, तो वी गॉट लॉस्ट। और करते करते हम पहुंच गए, कितना माइंड ब्लोइंग टेम्पल था, छोटा था, बहुत छोटा था। पर वहां हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि वहां इतने बंदर थे जो गाड़ी पे कूद पड़े, वी कुडंट गो। तो अगर हमारा इतना ग्रेट हेरिटेज है जिसको हम लोग इतना बात करते हैं जिसकी, तो वो आज कहाँ, why have we lost it? Why only taking pride in heritage is enough? Why don't we look after our heritage? Why aren't we taking the great philosophical part of Hindu culture forward? Why are we picking up only the imprinted in the stone kind of a stuff? हाँ, so टू थिंग्स कि सबसे पहले आपने बोला कि ये पेड़ जो फल फूल रहा है, ये पेड़ बहुत जर्जर अवस्था में है, इसीलिए इसके फूल फल ऐसे हैं। उसमें पोषण नहीं है, उसमें रंग नहीं है, उसमें वो नरिश करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए, क्योंकि ये जर्जर अवस्था में है। और वो जो खोखले हुए पेड़ होते हैं ना, जो अंदर से वो। दूसरा आपने कहा कि हम हेरिटेज की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, कंजर्व क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले तो मुझे उसकी वैल्यू होगी तो ना। आज आपके पास 10 लाख 20 लाख की गाड़ी होती है तो आप उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं क्योंकि यू वैल्यू इट। अगर मैं अपने घर के पास के मंदिर की कदर नहीं कर रही हूँ तो दैट इज बिकॉज आई डोंट वैल्यू इट, आई डोंट सी इट्स वैल्यू इन माई लाइफ, सो आई डोंट केयर फॉर इट। आई मे से वॉट एवर आई वॉन्ट टू से इन द on social media or in public domain, but that's what it means. So if our temples are lying in neglect, ये हमारी भक्ति की कमी है। आपने आचार्य चतुर्सेन का सोमनाथ पढ़ा होगा, एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। So he clearly says that we lost it not because people invaded, but also because we lost the power of bhakti. Gods do not need temples. We need temples to to kind of strengthen our own belief. भगवान तो कण कण में है, लेकिन हमें मंदिर चाहिए, मंदिर हमारी आस्था के चिन्ह है। तो अगर हम उनको नहीं संरक्षित कर पा रहे या वो नहीं है, तो वो हमारी आस्था की कमी का चिन्ह है। हमारी आस्था में कमी है, और आस्था में कमी है क्योंकि हमारे ज्ञान में कमी है। वो एक छोटा सा गैप मुझे लगता है कि हमारे बेसिक ज्ञान में कमी है। जिस दिन वो ज्ञान के गैप को हमने क्लोज कर दिया, आस्था अपने आप आएगी। और जब आस्था आएगी तो आस्था के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके जो भिन्न भिन्न रूप हैं, वो अपने आप आने लगेंगे। आप मुझे ये बताइए, हम 10वीं शताब्दी तक के मंदिर देखते हैं, बृहदेश्वरा देखते हैं तंजौर में, या खजुराहो में हम कंदरिया महादेव देखते हैं, या कैलाश
टेम्पल और एलोरा में देखते हैं, मोढेरा में देखते हैं गुजरात में, ये कब के बने हैं? आज हमें विद ऑल पॉसिबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू अस, वी कैन नॉट रिक्रिएट देम. So do बिल्कुल. you think it is only the technological lack we have? No, technology we don't lack. What we lack is the आस्था. वाह, आप तो, मैं धीरे धीरे आपका फैन बनता जा रहा हूँ. बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता है कि मैं, जैसे खजुराहो का आपने नाम लिया, अब खजुराहो में जी. मैंने वीडियो भी बनाया है. आई वॉज जी. मेस्मराइज्ड, और मेरा जो वीडियो है, इट्स नॉट अबाउट भक्ति और एनीथिंग, इट इज अबाउट ह्यूमन एक्सेलेंस. जी. मैंने बोला कि इतना एक्सेलेंस, मतलब उसमें एक स्कल्पटिंग है जिसमें एक औरत नहा के निकली और उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही हैं. आई मीन, हाउ कैन यू डू दैट? नोवेयर इन द वर्ल्ड आई हैव सीन समथिंग लाइक दैट, यू नो. फिर वो मिरर में रिफ्लेक्शन वाली जो चीजें हैं, फिर वो पानी का फ्लो, किस तरह से पानी बाहर आता है, जो मंदिर में हम लोग पानी यूज करते हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी है. अच्छा, वो छोड़िए इंजीनियरिंग, हम जब खड़े हैं सामने तो एक एस्थेटिक्स भी होते हैं. फिर लाइट की रेज कैसे पड़ेंगी अंदर, और किस तरह से वो लाइट अप कर देंगी उसको एग्जैक्टली जब आप मेडिटेशन के लिए सुबह पहुंचते हैं वहां पे, और कैसे फिर वो डार्कनेस में चला जाएगा एब्सोल्युटली, सो यू कांट इवन सी द शिवलिंग. अब मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं बहुत अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग भारतीय और भक्त भी मानता हूं. मेरा जो प्रॉब्लम है कि चलिए मुगलों ने खराब किया आपको, चलिए अंग्रेजों ने खराब किया आपको, लेकिन जब आप आजाद हो गए तो आप मुझे बताइए, इन 70 सालों में 1947 से लेकर आज तक आपने कोई भी एक बिल्डिंग ऐसी बनाई है क्या? एक भी बिल्डिंग जिसको देख के लगे कि वी शुड फील प्राउड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर? आपने इंडियन आर्किटेक्चर को तो किनारे रख दिया. भद्दी भद्दी गंदी, इतनी अनएस्थेटिक बिल्डिंग्स, वी आर एस्थेटिकली चैलेंज्ड, आपने बर्बाद कर दिया. अब देखिए, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं. जयपुर में जैसे मार्केट है पूरा, कई शहरों में ऐसे मार्केट्स हैं जो पुराने मार्केट्स हैं. अगर आप उनमें से सारी होर्डिंग्स और वो लेबल्स और साइनेज हटा दें, उनको एकदम नेकेड उसमें देखें, तो वो इतनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर, द कन्वीनियंस, द यूटिलिटीज. लेकिन आज वो गंदे, फिल्थ, गलीच एकदम बन चुके हैं. तो हमने क्यों नहीं ऐसी बिल्डिंग बनाई कोई भी जिसको देख के लोग कहें वाह, ये है भारत? सिर्फ मैंने एक पोस्ट लिखी थी अपने ब्लॉग पे ऑन इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ इंडिया. वो एंशियंट से लेकर अभी तक पोस्ट इंडिपेंडेंस की एक बिल्डिंग है उसमें, विच इज लोटस टेम्पल ऑफ दिल्ली, जिसको आप एस्थेटिकली कुछ कह सकते हैं. उसमें बारीकियां नहीं है, बट एट अ ग्रॉस लेवल इट इज ब्यूटिफुल. हम कट पेस्ट के एरा में हैं, सब कुछ कट पेस्ट करना है. आई विल टेल यू, बैंगलोर विच इज आवर आईटी हब, जहां पर हमारी सबसे बड़ी आईटी कंपनीज के बड़े बड़े कैंपसेस हैं, इट्स अ प्लेस विच इज ब्लेस्ड विद परफेक्ट वेदर. वहां एसी की जरूरत नहीं होती थी, एटलीस्ट 20 साल पहले तक. वहां आपको स्वेटर की जरूरत नहीं होती थी. द मोस्ट प्लेजेंट वेदर दे हैव. वहां पर उन्होंने, दे हैव मेड दिस ग्लास एंड स्टील जायंट्स, जहां आपको दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है, दिन में भी आपको एसी चलाना, 24/7 एसी चलाना होता है. क्यों हम हमें जो, अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूं तो, कि जो सूर्य देव का और जो आपको सारे पंच तत्वों का आशीर्वाद मिला है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको आप उल्टा करके आप एक एनवायरमेंटल हैजर्ड बना रहे हैं, जहां अंदर बैठने के लिए आपको एक 500 लोगों का को बिठाने वाले कमरे को आपको एसी से ठंडा करना पड़ता है. किस लिए? क्योंकि हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स आएंगे, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए. तो हम एस्थेटिक्स में, और दूसरा रीजन ये है कि वो आसान से जल्दी से बन जाती है, वो 1 साल में खड़ी हो जाती है बिल्डिंग. और एक एस्थेटिकली डिजाइंड बिल्डिंग को बनाने में शायद थोड़ा समय ज्यादा लगता है बनाते समय. तो ये हम कट पेस्ट मोड में हैं, चाहे वो हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे हमारे पब्लिक स्पेसेस हो, या इवन हमारे जो नए मंदिर बन रहे हैं. अगर आप उनमें जाएंगे, जो कुछ इक्का दुक्का बड़े बड़े 2 मंदिर बन रहे हैं, उनमें भी आप जाएंगे तो आपको वो एक्सीलेंस की कमी मिलेगी. और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी इकोनॉमी फ्लरिश करती है एट एनी पॉइंट इन टाइम, दैट फ्लरिशेस बिकॉज दैट सोसाइटी इज परस्यूइंग एक्सीलेंस.
जब हम एक्सीलेंस को परस्यू कर रहे थे तो हम दुनिया को लीड कर रहे थे। आज की डेट में या पिछले 25-30 साल में अमेरिका में कुछ हद तक एक्सीलेंस परस्यू हो रही थी तो वो वर्ल्ड को लीड कर रहे थे, किसी इन दोनों के बीच में कभी यूरोप ने किया था। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है या दुनिया को लीड करना है, या हम चाहते हैं कि हमारी तरह से हमारी जो भी फिलॉसफी है या हमारा जो भी हेरिटेज है उससे विश्व प्रेरित हो, तो हमें एक्सीलेंस को परस्यू करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम कट पेस्ट मोड में हैं। मैं बहुत बिजनेस इनोवेशन पे भी मैं एक कॉलम लिखती हूँ और मेरी पहली बुक भी बिजनेस इनोवेशन पे थी और मैं उसको फॉलो करती हूँ। बिलीव मी, जितने आइडियाज मैं देखती हूँ स्टार्टअप्स में, so many of them are just cut paste of what is happening in US, and they will tell you it is innovation. Said boss, you can Google and find out that you're just copy pasting, you're not even Indianizing that. मैंने अपनी बुक में लिखा था, जब मैंने फ्लिपकार्ट के बारे में लिखा था, तो I had clearly said their USP was there are so many e-commerce companies came, but the success of Flipkart was their cash on delivery, which is what they Indianized. तो आपको एटलीस्ट कट पेस्ट भी कर रहे हैं तो उतनी इन्वेस्टमेंट तो कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट योर कस्टमर्स टू चेंज फॉर यू, यू हैव टू गिव देम व्हाट दे नीड। तो एक्सीलेंस मुझे नहीं लगता आज की डेट में हम परस्यू कर रहे हैं। वी आर देयर फॉर क्विक मनी, quick gains. We are not building organizations which will last for 100 years, 200 years, 300 years or forever. We are looking for अगर आप स्टार्टअप स्पेस भी देखेंगे, most people स्टार्टअप की न्यूज आप गूगल कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? फलाने को इतने फंडिंग मिली, इमकाने को इतनी फंडिंग मिली। Now if funding is your goal, then you're not building businesses. Yeah. And even the craziest part of this is कि जो हमारे टॉप लीडिंग बिजनेस हाउसेस हैं, क्योंकि जो टॉप लीडिंग बिजनेस हाउसेस हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो कि 10,000 करोड़ रुपए की शादियां करते हैं अपने बच्चों की, वो लोग भी इनोवेशन में नहीं खर्चा करते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मैंने काफी मैंने ये अभी मैं जब ये कश्मीर फाइल्स कर रहा था तो पिछले 3 साल 3.5-4 साल हो रहे थे अब तो लगभग, तो मैंने बहुत रिसर्च किया एंड आई रियलाइज्ड कि हमने कश्मीर वाज जिसको कहते हैं R&D का पीठ था। इट वाज द एपेक्स बॉडी ऑफ R&D। आप देखिए वहां से क्या क्या निकला, फिलॉसफी, पूरा नाट्यशास्त्र। आई मीन पूरा वर्ल्ड आज जो हॉलीवुड में मूवीज बनती हैं, बॉलीवुड में या टीवी में जो हम देखते हैं, इवन जो पॉलिटिशियंस जो नाटक करते हैं वो भी वहीं से निकले हुए हैं। Then musicology we have created over there. आयुर्वेदा हमने पूरा वहां पे इन्वेंट किया। और सबसे बड़ा इनोवेशन आप देखिए, आयुर्वेदा और योगा की मैं बात करता हूँ। आज हर कोई अप्रोप्रिएट करता है योगा को, हर कोई योगा और आयुर्वेदा की बातें करता है, पर nobody understands why yoga and ayurveda are so magical and phenomenally innovative and extraordinary things. पूरा मेडिकल साइंस जो है डेड ह्यूमन बॉडीज को काट काट के बना है, राइट? जब कोई मर गया उसकी बॉडी को काट के दे अंडरस्टूड कि यहाँ लिवर है या ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा का पूरा मेडिकल साइंस की जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, वो जानवरों पे या चूहों पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनती है। पूरा एंटायर साइंस ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा इज बाय ऑब्जर्विंग लिविंग बॉडीज। दे नेवर कट एनी बॉडी टू अंडरस्टैंड। आपका दिमाग, माइंड, which neuroscience till date doesn't know, 1 million frauds can never understand what Patanjali wrote about mind, you know. तो इतनी इनोवेटिव सोसाइटी में, why I am so proud। देखिए आज हिंदुस्तान को देखें तो nobody will be proud of India। इनफैक्ट मैं बहुत बिटर ट्रूथ बोल रहा हूँ। आप कल किसी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट लिखा, किसी ने बड़ी अच्छी बात करी, किसी अफगान के लोगों को लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे कि देखो अफगान लोग कैसे भाग के जा रहे हैं। किसी ने लिखा कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा कर दें और कहीं यू आर फ्री टू गो टू यूएस, डोंट यू थिंक द एंटायर दिल्ली विल बी इनसाइड द एयरपोर्ट टू लीव इंडिया? व्हिच इज ट्रू। एक बार मोदी जी ने भी बोली थी ये बात किसी स्पीच में कि भारत में सबको, यंग लोग को लगता है कैसे यहाँ से भागे। आप किसी भी मिडिल क्लास घर में चले जाइए, किसी भी त्रिपुरा से लेकर त्रिवेंद्रम तक कहीं भी चले जाइए, किसी भी मिडिल क्लास का एक ही ड्रीम है कैसे वहां से निकलें, भागें। क्योंकि तो इतनी ग्रेट सोसाइटी। नाउ आई वांट टू पिक अप योर बुक एंड इतनी ग्रेट सोसाइटी, ग्रेटेस्ट थिंकिंग। आई मीन वी आर द ओनली
society where it's very difficult to draw the line between कि कहां पे वो फिलॉसफी बन जाती है, कब वो रिलीजन बन जाती है, कब वो सोशल साइंस बन जाती है, कब वो चाणक्य की पॉलिटिकल साइंस बन जाती है, वी डोंट नो. स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस, इतनी ग्रेट थिंकिंग, और वो सारी की सारी जो ग्रेट थिंकिंग थी वो आपको किसी अब्राहमिक का रिलीजन की तरह से ये भी नहीं कहती कि तोता बन जाओ और बस इसी को रटो. इट गिव्स यू फ्रीडम टू, जो आप चाहें, आप जैसा करना चाहें वैसा It करें. doesn't give you freedom. It tells you to question and learn from your own experience. जिज्ञासु शब्द ही हमारा है, सीकर. आप जिज्ञासा यूरोप अनुभव. जाइए, या अगर आप यूरोप जाएं तो ट्रैवल के नाम पे, मैंने बहुत ट्रैवल किया यूरोप. ट्रैवल, अब तो मैं थक गया हूं, बोर हो गया हूं. ट्रैवल के नाम पे उनका 2 ही 3 चीजें हैं, चर्च, कैथेड्रल, और बस यही है, और कुछ नहीं है, और या पैलेस. राइट. तो आज की तारीख में ऐसा क्या है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हेरिटेज एंड ऑल दोज थिंग्स. क्या हम ट्विटर पे ही विश्व गुरु बनना चाहते हैं? राइट. ये सारी जगह जो आप गई हैं, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा, मुझे आई एम सरप्राइज, मुझे नहीं पता था. दिस फोटोग्राफ आई वाज सीइंग, आपने लिखा है कि जहां आपने ये ट्रैवल किया इस एरिया में, अयोध्या के आसपास, वेस्टर्न यूपी में, तो सॉरी ईस्टर्न यूपी में, वहां पे सब जगह पे सीताराम आपको मिला, नॉट श्री राम. ये क्या स्टोरी? आई वांट टू, एंड व्हाई दैट इवन ग्रेटेस्ट ऑफ द भक्त्स ऑफ श्री राम डू नॉट नो दैट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. मैंने जो भी लिखा है वो मेरे अपने अनुभव से लिखा है, पढ़ा है, लेकिन कोलैबोरेटेड विद माय ओन अनुभव. सो अयोध्या के साथ मेरा कुछ ऐसा संयोग हुआ था कि मैं पहली बार तो एक मीडिया ट्रिप पे गई थी 2 घंटे के लिए, और वहां पर जो भी हुआ वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि मेरा जो भी राम जन्मभूमि जाके जो आंसू मेरे गंगा जमुना की तरह बहे, तो उसके बाद मेरे मन में ये संकल्प हुआ कि मुझे अयोध्या को ढंग से आके पढ़ना है. तो मैंने स्कंद पुराण में पूरा अयोध्या महात्म्य पढ़ा, और मेरे पास करीब 100 जगहों की लिस्ट थी जो अयोध्या के बीच में मुझे देखने थे. तो मैं करीब 10 दिन के लिए अयोध्या रहने चली गई, ऐसे बोरिया बिस्तरा उठा के, और वहां ना होटल्स अच्छे हैं, ना कोई और सुविधा है, पर ऐसे ठीक है, it doesn't matter, when you are a seeker, it doesn't really matter. But Ayodhya Shodh Sansthan really helped me with lot of information, lot of support in whatever way they could. And तो मैंने पूरा मैपिंग किया, और इनफैक्ट मैंने उनके लिए फिर अनुवाद किया अयोध्या महात्म्य का, which is a book which came later and was published by Ayodhya Shodh Sansthan, and we recreated the map of Ayodhya as it is described in Skand Puran. And आप विश्वास नहीं करेंगे, about 80 to 90% of the places still exist in some form and shape, and you can see them. But nobody knows about it, क्योंकि किसी ने उसकी उस तरह से खोज नहीं की है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है. अब जब मैं ये 10 दिन वहां गुजार रही थी, मंदिर जा रही थी, तो दिस केम आउट कि वहां पर सुबह जब शिव मंदिरों में, बहुत सारे शिव, छोटे छोटे बड़े शिव मंदिर हैं, वहां पर जब वो बेल पत्र चढ़ाते हैं तो उस पे पहले सीताराम लिख के फिर चढ़ाते हैं. तो ये एक शिव और विष्णु का जो एकत्व है, ये उसका मेरे लिए प्रतिचिन्ह है. आप इसको किसी भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं आपके अपने अनुभव पे, लेकिन हर पत्ते पे वो सीताराम लिखकर फिर उसको अर्पित करते हैं. फिर वहां सीताराम बैंक है, वाल्मीकि मंदिर है, जहां पर पूरी दीवारों पर 24,000 पूरे श्लोक रामायण के लिखे हैं, मार्बल में लिखे हैं. जैसे रामचरितमानस का एक मंदिर है काशी में, तुलसी मानस मंदिर है, वहां पर भी ऐसे रामचरितमानस लिखी है. तो इस वाल्मीकि मंदिर के ऊपर एक सीताराम बैंक है, जहां आप सीताराम लिखने वाली पुस्तकें आपको दी जाती हैं. जो भी वहां जाता है उसको एक पुस्तक दी जाती है. एक से ज्यादा आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, या आप छपवा के वहां दान कर सकते हैं. वहां आप देखेंगे पूरे बड़े बड़े पाइल्स रखे हैं, सीताराम बैंक लिखा हुआ. जब आप वो देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आस्था है, लेकिन आस्था हमें दिख नहीं रही है. और विवेक जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड दैट वी सी ऑन ट्विटर इज अ irrelevant world when you step out and travel in the hinterlands of India. इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ आपके 2,000, 4,000, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने भी फॉलोअर्स रहे, उस दुनिया में ये ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है. वहां पर एक आम भक्त भी आपको डांट देगा. मैंने लिखा है एक जगह उड़ीसा में, मैं अपने जिज्ञासा में
पूछ रही हूँ तो वो डांट भी देंगे कि तुमको क्या लेना, किसने बनाया था, क्या किया था, तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम आके अपना माथा टेको, आशीर्वाद लो और चलो। तो वो एक डिफरेंस है, और आप उससे कनेक्ट होने लगते हो जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ती है। हो सकता है 20 साल पहले वही होता तो मैं उसे वापस कुछ जवाब दे देती, लेकिन आज मैं चुप उसकी आवाज, उसकी बात सुन के I went on to do what I needed to do. So, you know, it's a process to reconnect. It is not something where it's not a digital thing that you can switch on off. It's a slow process to go back. Yeah. You know, आप एक पेड़ को अप्रूट करते हैं तो उसको फिर से फलित होने में कुछ समय तो लगता है. So it's a process. मेरी जो बुक है अर्बन नेक्सल्स, लोग एक्चुअली क्या हो गया, सब कुछ इतना पॉलिटिकल हो गया है कि लोग पढ़ते नहीं है, लोग सिर्फ सुनते हैं, यानी देखते हैं, समझते नहीं है। वो पूरी बुक अगर आप देखें तो उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट इज अबाउट माय ट्रैवल इनटू इंडिया जी, एंड डिस्कवरिंग डिफरेंट इंडियाज। ओके, छोटे छोटे शहरों में, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मेरे पिताजी वाज वाइस चांसलर, तो काफी मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनता था। ही वाज आल्सो ऑनरेडी विजिटिंग प्रोफेसर टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं बड़ा प्राइड लेता था, मैं सोचता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज, भारत के महान साहित्यकार, पॉलिटिशियंस, बैरिस्टर्स, चीफ जस्टिस, मतलब इंडिया की क्रीम दला क्रीम जो है वो पूरी की पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकली थी। तो लेकिन जब मैं वहां गया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मेरे को शब्द भी नहीं मिल रहा है, शायद इसके लिए कोई शब्द भी नहीं हो। मतलब इट वाज लाइक माय एंटायर वर्ल्ड फेल अपार्ट। इतना गंदा पूरे वहां पे। अच्छा, ग्राफिटी भी हो तो मैं समझू कि चलो मॉडर्न आर्ट, स्ट्रीट आर्ट वहां पे है। गंदे पोस्टर्स, पॉलिटिकल, पान की थूकें, बुरा हाल, पेड़ सूखे हुए, कोई पेड़ अगर हरा है तो उसमें इतनी मिट्टी और धूल, लड़के लड़कियों को पढ़ाई छोड़ के हर चीज से मतलब, गुंडागर्दी। एंड आई go to Oxford and Cambridge. Oh my God, they have tours. They have tours. आप कभी गई हैं, आपने देखा होगा। They give you tours in all these universities. They show you. They have shops. मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ी एडवांस कंट्रीज हैं हम वैसे हो जाएं, लेकिन हिस्ट्री तो हमारी भी उतनी पुरानी है। तो वो लोग तो, हाँ, वो तो एक 100 साल पुरानी चीज को भी ऐसा करते हैं। अच्छा चलिए, आप गरीब मुल्क हैं, आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे मेरा गांव है वहां पे धन्योरा में। मैं सबसे पहले आपसे डिसएग्री करूंगी, हम गरीब नहीं हैं। हमें गरीब दिखाने में बहुत लोगों का फायदा है। हाँ, हम मटीरियली गरीब नहीं है, और आई कैन गिव यू एम्पल एग्जांपल्स फ्रॉम माय ट्रैवल टू रिफ्यूट दैट। चलिए उस पे बात करते हैं। लेट मी फिनिश द थॉट। गरीबी की तो मेरा जो सोच थी वो ये थी कि आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएं, जिसको गरीब मानते हैं लोग, और हैं भी गरीब वो लोग, कई मजदूर हैं, लेकिन वहां की जो साफ सफाई है, जो घरों के पास हाइजीन है, एक व्यवस्था है घर के अंदर, भले 4 ग्लास होंगे तांबे के, पर वो भी जिस तरह से रखे हैं, जिस तरह से वो राख से या मिट्टी से धोए जाते हैं, आप वही उठाइए, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा इनकम वाले लोगों को आप अर्बन एरियाज में देखिए तो आपको वही मिलेगा। आपको गाइड्स के नाम पे गुंडागर्दी ज्यादा मिलेगी। मैं वो जो नेशनल हेरिटेज वाले गाइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाइड्स इन खजुराहो जहां पे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लाइक इट्स। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये मानसिकता की गरीबी है, ये है क्या? ये आई मीन ये सब दिखता है और हर आदमी जानता है इसको। नरेंद्र मोदी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर, क्योंकि उनने भी लिखा है इस बारे में, वहां से लेकर औरबिंदो से लेकर आज तक, एवरी सिंगल पर्सन सेज वी डोंट नो व्हाट टू डू विद आवर हेरिटेज। व्हाट इज दैट पॉवर्टी कॉन्शियसनेस व्हिच इज फोर्सिंग अस टू बी लाइक? ये एक 2 लेवल हैं। एक तो हीन भावना है कि हम कम हैं दूसरों से, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो हीन भावना नहीं गई है। तो जो भी अंग्रेज करेंगे वो बेटर ही होगा हमसे। मैं आपको बताती हूँ, जब अब तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, शुरू शुरू में जब बहुत लोग बाहर नहीं गए थे इंडिया से, तो लोग ऐसा बोलते थे कि अरे यूएस के, यूके के तो 2 स्टार होटल भी हमारे 5 स्टार से बेटर होंगे। आई से एक्सक्यूज मी, हमारे 5 स्टार्स को कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। The best of 5 stars in Europe cannot compete with our 3 star, 4 stars in terms of hospitality. Said वहां आप गिर जाए तो आपको कोई उठाएगा भी नहीं। यहाँ तो वो आपको they make you feel like a queen or a king.
सो ये एक तो हीन भावना है। दूसरा, जो हम पहले बात कर रहे थे एक्सीलेंस की, विवेक जी, एक्सीलेंस ना एक इंडिविजुअल से भी शुरू होती है। ये मतलब जो कलेक्टिव एक्सीलेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से शुरू होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यू गो टू एनी ऑफ योर शॉपिंग कॉमन शॉपिंग मॉल्स, हाँ, ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं, देर आर दीज आर्मी ऑफ यंगस्टर्स वेयरिंग द यूनिफॉर्म्स ऑफ द their companies and standing, and they don't know, they're standing in front of a shelf and they don't know what is there in the shelf. They cannot tell you what is there in stock, what is not there in stock, and what are the variants. If you ask them any basic questions, I'm not even asking about some complex things, and I have experimented it and I've written about it on my blogs, that you're standing there for 8 hours selling basic groceries, everyday needs, and you cannot pick up the packet and read what is it or get the basic knowledge about it. और फिर ले दे के when you report this, people say training issue. I said no, it's not a training issue. What you can teach me is limited. What I can learn is infinite. अगर मेरे में लर्निंग एटीट्यूड होगा, आज मैं कैसे पढ़ रही हूँ या आप कैसे पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू स्टडीड फिल्म मेकिंग, आई डोंट नो इफ नन ऑफ अस स्टडीड डिजिटल मीडिया, नन ऑफ मैंने तो लैंग्वेज I never went to any film school. I never assisted anybody self learning because I wanted to excel in this line. Yeah. एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप 20 साल पहले मुझसे बोलते कि मेरी किताबें आएंगी, आई वुड हैव लाफ्ड इट ऑफ, क्योंकि कहीं पूरे खानदान में किसी ने किताबें नहीं लिखी हैं, कहीं से कुछ नहीं किया है, सब इंजीनियरिंग और ऐसे टेक्निकल और बिजनेस फैमिली से हम आते हैं। तो कैसे अगर हम कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग वी एक्सेल्ड, वी आर ऑन द वे समवेयर। सो वो जो इंडिविजुअल एक्सेलेंस है कि मैं जो भी कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदर से बाहर पता होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, इन अ फैमिली बिजनेस, और ये हैदराबाद की बात है, आई वाज लिविंग इन हैदराबाद एंड द ग्रोसरी स्टोर इन आवर कॉम्प्लेक्स यूज्ड टू बी रन बाय अ मारवाड़ी फैमिली। और वो फैमिली रन बिजनेस की तरह, कभी फादर बैठे हैं, कभी मदर बैठी हैं, कभी बच्चे बैठे हैं, बच्चे मतलब लिटरल टीनेजर्स। I remember at the other end of the shop of the store, I was talking to my husband. I spoke about tofu. I said tofu nahi dikh raha hai. I only said this to my husband, not to the shopkeeper. The guy came running and said, "Ma'am, ये क्या होता है? आप बता तो मैं मंगवाता हूँ." Next day he got it. He called me. He delivered it home. He didn't know what it is. So ये एटीट्यूड जब होता है, बिजनेस कैसे फ्लरिश नहीं करेगा? Why are our retail chains not making money? It is the excellence, और ये एक्सेलेंस हर लेवल पे है। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने चले जाइए कॉर्पोरेट हाउसेस में, sometimes I get invited to talk to them. Believe me, all they are looking for is entertainers. They are not looking for knowledge. They are not looking for training. They are not looking for anything. They are looking for entertainers. And I tell them, boss, I am not an entertainment. There is an entertainment industry. Go ask people to come and entertain you. But in the name of training, all they are looking for is entertainment. They don't want to think out of the box. So ये individual से शुरू होकर it goes on till our leaders in every sphere of life. In every sphere of life, and not just one sphere of life. Whether they are leaders, political leaders, industry leaders, education leaders. Education, last 2 साल में I have had the best students from best universities come to intern with me, extremely disappointed with their attitude. So excellence कहाँ से आएगी? But coming back to the question of poverty. So poverty को नापने के दो तरीके। I'm talking about poverty consciousness. जी, कॉन्शियसनेस की भी मैं बात कर रही हूँ। अभी अगर मुकेश अंबानी जी हमारे घर आएंगे तो बोलेंगे, अरे भैया तुम 3 बेडरूम के घर में रहते हो, तुम कितने गरीब हो। भैया रिलेटिव टू हिम हम गरीब हैं। तो ऐसे ही अगर मैं किसी की झोपड़ी में जाकर बोलूं कि भैया अरे तुम तो यार ऐसे घर में रहते हो, तुम गरीब हो, these are relative, these things have always existed in society, they will exist, let's accept it. As long as people have decent food to eat, एक छत है सिर पे, उसके बाद जो differences हैं, those differences we have to cover through our own hard work. आपके पास अगर 50 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 3 लाख की गाड़ी है, तो that distance is the distance between your hard work, maybe some play of destiny, but that's it. Destiny भी है तो उसको accept करना है. But let me give you examples. I have been invited into homes when I went looking for knowledge, Dwarka में, and I've written about this in the book.
Dwarka mein, I was asking a lot of questions about Dwarka, trying to, again, Dwarka Mahatmya from Skand Puran, I was trying to find places, और कोई मेरे को जवाब नहीं दे रहा था, मिल नहीं रहे थे. So my driver said, "Ma'am, मेरे दादाजी used to be a librarian, but he's 92-year-old. Do you want to come and meet him?" I said, "Yes." Vivek ji, I went to his house. I have never had a better आतिथ्य in my life. जितना आतिथ्य मुझे उस घर में मिला, जितना बड़ा वो घर था, उतना बड़ा घर मैं कभी सपने में भी नहीं खरीद सकती. जितना आतिथ्य, प्यार और ज्ञान, उसके दादाजी sat with me for 2 hours and he gave me everything about Dwarka that I needed. You know, so अब इस घर को अगर हम उसको सिर्फ ड्राइवर को देखेंगे कि he is a driver working in a 4-star 5-star hotel and we try to tip him 500 rupees when we leave, आपको लगेगा वो गरीब है, लेकिन आपने कभी उसकी दुनिया जाके देखी नहीं. वो ड्राइवरी तो ऐसे ही मस्ती में कर रहा है. सही बात. To enjoy life, to get connected with people, he's doing that. And also the richness has to be, how rich is their life when a grandfather can give so much knowledge that the best of scholars in the city cannot give, and the adithya they can give to an absolute. But the problem is, who cares about them? मैंने अभी हम लोगों ने एक शो किया था 2019 में, पल्लवी's show actually called भारत की बात, and पल्लवी ने एक दिन बोला कि यार पेपर खोलो तो नेगेटिविटी, न्यूज खोलो नेगेटिविटी, मीटिंग्स में जाओ, पार्टी में जाओ, सब लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं, कुछ तो अच्छा होगा इस देश में. तो वी ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड नूक एंड कॉर्नर, छोटी जगहों पे हम ज्यादा गए. पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भारत में आप द मिनट यू लीव बिग सिटीज एंड यू स्टार्ट ट्रेवलिंग टू स्मॉलर सिटीज, आपको खाने की चिंता नहीं करनी, आपको बहुत सारी चीजों की चोरी चपाटी की चिंता नहीं करनी. हम तो कितनी बार अपना इक्विपमेंट छोड़ देते थे, नोबडी वुड टच इट. अगर मैं दिल्ली बंबई कानपुर इलाहाबाद में छोड़ दूं, लोग चुरा के ही ले जाएंगे उस चीज को 2 मिनट के अंदर. पर वी हैव नेवर हैड प्रॉब्लम्स. पीपल एक्चुअली डू नॉट हैव पॉवर्टी कॉन्शियसनेस. पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इज अ वेरी अर्बन फिनोमिना जहां पे कंपटीशन है. दे हैव एक्चुअली अबंडेंस कॉन्शियसनेस. दूसरी चीज क्या है, मैंने ये देखा है कि छोटे शहरों में जो लोकल नॉलेज अबाउट देयर ओन हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स जो है, वो भले ही थोड़ी सी वो हो गई हो, क्या बोलते हैं, वक्त के साथ चेंज हो, अतिशयोक्ति आ गई हो, कुछ हो गया हो, लेकिन द एसेंस इज देयर, क्योंकि उसमें अंधभक्ति नहीं है जी. उसमें ये जो नैरेटिव की लड़ाई नहीं है कि एक नैरेटिव ढूंढने के लिए कुछ भी बोलो, जो अरे साहब ये तो 20,000 साल पुराना है. कई बार तो मैं जाता हूँ शहरों में, ये लिटरेचर फेस्टिवल्स में और उसमें, और मैं पैनल्स में बैठता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ. राधा, मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, मैंने इसके पहले आज कभी बोली नहीं है. आप बिकॉज यू आर सो ऑनेस्ट एंड नाइस, की प्योरिटी है आप में कि निकल के आ रही बात. मैं देखता हूँ बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं और इस बात पे ही बहस करते हैं कि रामायण या महाभारत कितने साल पुरानी थी. कोई कहता है 3,000, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है, एक सज्जन थे उन्होंने बोला 50,000 साल पुरानी है. ओके, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं. भाई देखिए, लॉजिक कहीं से भी फिट कर सकते हैं. जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं है उस चीज में तो 1000 प्रमाण क्रिएट किए जा सकते हैं. किसी भी चीज के लिए, जिस चीज को आप जानते नहीं उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं. भाई अंतरिक्ष कैसा है, आप मूर्ख से पूछेंगे, मूर्ख जैसी बात करेगा. लेकिन अगर 100 मूर्ख अंतरिक्ष के बारे में बात करने लगे तो ज्ञानी आदमी जब बात करेगा तो वो मूर्ख लगने लगेगा. तो मैं ये कहता हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है 10,000 है, 50,000 है, 60,000 है. तुम उसका जो एसेंस है वो लोगों से बात करो ना. तुम्हारी जिंदगी में क्या महाभारत और रामायण तुम जी रहे हो, किस चीज के लिए? तुम यहां से निकलते ही साथ तो करप्शन में घुस जाओगे. तो ये रामायण महाभारत की खोखली बातें जब तक लोग करते रहेंगे, कुछ भी आर्ग्यूमेंट होगा उसको पुराण, वेद, उपनिषद, मैं पढ़ता हूं, कंज्यूम करता हूं, उससे सीखता हूं. मैं आपने देखा होगा, मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे बहुत लिखता हूं, क्रिएटिविटी के ऊपर. अभी मैंने लिखना शुरू किया 4-5 साल से. क्यों? क्योंकि मैं पुराने अपने टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, राइटिंग्स पढ़ रहा हूं. मैं अपने जो, आज कालिदास क्यों नहीं पढ़ाते किसी को? जिस दिन कालिदास पढ़ाने लगेंगे, हर बच्चा जो है बॉलीवुड के गानों पे नाचना छोड़ के कुछ लिटरेचर और म्यूजिक और मीटर सीखने लगेगा, कैसे लिखा जाता है अच्छा साहित्य. ये पल्प फिक्शन से हम बाहर निकल आएंगे. तो मैंने उससे जो सीखा है कि वी
actually are such a creative society. आप ये देखिए कि this whole, what is creativity? Creativity is what you can imagine. ये पूरा इमेजिनेशन है ऑफ जो मिलियंस ऑफ गॉड्स एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स थ्रू डेइटीज एंड देवी देवताओं के थ्रू ह्यूमन ट्रेट्स को मैनिफेस्ट करना. ये बताइए वर्ल्ड में ऐसी क्रिएटिविटी कहां मिलेगी? लेकिन आज हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक्सेलेंस, जिस जो तीन पिलर्स जिसके, मैं अगर कोई पूछे व्हाट इज हिंदू कल्चर और हिंदू फिलोसफी, आई वुड से देयर आर 4 पिलर्स टू इट. वन इज एक्सेलेंस, वन इज क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी. अब प्रॉब्लम ये है कि आज इनोवेशन, सॉरी, एक्सेलेंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी. खजुराहो के जो मंदिर हैं, मुझे बताया वो स्कल्पटिंग करने के पहले सारे स्कल्पटर्स बैठ के मेडिटेट करते थे, और जब तक जो बनाना है प्रतिमा, उनको जब तक वो खुद नहीं बन जाते थे तब तक वो हथौड़ा और वो लेके छेनी लेके उसको बनाना शुरू नहीं करते थे. आप मुझे ये बताइए कि why we are not using the great assets we have. जी, तो विवेक जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और क्रिएटिविटी इनोवेशन पे मैं भी पढ़ती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ जितना थोड़ा बहुत पॉसिबल है. हमने क्रिएटिविटी को एक अलग थलग वस्तु समझ लिया है, जिसको हम आउटसोर्स कर देते हैं. मतलब आर्ट है, गाना बजाना, नाचना, उसको अपने नहीं, वो भी नहीं. और जहां पर भी क्रिएटिविटी मेरी लाइफ में चाहिए, मैं उसको आउटसोर्स कर सकती हूँ. मुझे अपने घर की दीवार पे एक फोटो लगानी है तो एक आर्टिस्ट की ले आओ, पेंटर को ले आओ, या अगर दिवाली पे सजावट करनी है तो उसके लिए कोई डिजाइनर आ जाएगा. हाथ पे मेहंदी भी लगानी है तो कोई डिजाइनर आके लगाएगा. ठीक है. अगर आप दिल्ली में एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आज से 100 साल पहले तक भी, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन तक भी, हमारे घर की हर चीज में आर्ट वॉज इनहेरेंट इन इट. और वो आर्ट प्रैक्टिस होती थी घर के लोगों से. तो घर की दीवार कैसी दिखेगी, या घर के बाहर जो अल्पना बनता है, या रंगोली या कोलम जो भी बोलते हैं, वो घर की महिलाएं जो है वो बनाएंगी. या घर में जो भी क्रिएटिव है, अगर आपके बर्तन भी होते थे, बर्तन के ऊपर भी क्या डिजाइन एच्ड होगा, ये आपकी फैमिली के क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता था. आज मुझे अभी भी याद है, हमारे यहाँ बचपन में शादियों पे बर्तन गिफ्ट में दिए जाते थे विद लिख कर की फला फला की शादी के, शादी पे गिफ्ट में मिला, प्रॉपर लिख के किसने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, एक मोमेंटो की तरह. तो उसमें क्रिएटिविटी हमारे हर चीज में होती थी. हम कपड़ा खरीदते थे. मेरे अपने कॉलेज के दिनों में लेट 80s भी नहीं, अर्ली 90s में खादी से जाके हमारे पास वो 4 या 5 तरह के कपड़े मिलते थे, 4-5 रंगों में वो खादी के. लेकिन हम उसको टेलर के पास ले जाके इतने अलग अलग ढंग से सिलवा लेते थे कि कोई नहीं कह सकता था ये सेम कपड़ा है जिसको आप 10 लोगों ने पहन रखा है. लेकिन आज वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है. यू कांट फाइंड गुड टेलर्स. जो टेलर्स हैं जो कर सकते हैं वो अनअफोर्डेबल है फॉर द लास्ट. सो हमने क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल के आउटसोर्स कर दिया है कि भाई ये काम कोई और करेगा, मैं नहीं कर सकता. तो ये जब हम वापस लाएंगे कि भाई मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते. अगर 50 साल पहले लोग कर सकते थे तो हमारे पास तो बहुत टूल्स अवेलेबल है करने के लिए, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. विद इंटरनेट वी हैव लिटरली एवरीथिंग. एंड एक छोटे से एरिया में जहां हमने इसको फ्लरिश होते देखा और लास्ट 2 सालों में पोस्ट पैंडेमिक देखा, वाज कुकिंग. फूड पे लोग बहुत एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया विद यूट्यूब वीडियोस एंड एवरीथिंग. द सेम थिंग नीड्स टू कम बैक, एंड समवेयर वी नीड टू, आई मीन, I also, one of the things that I very strongly feel about these days is we need to reduce consumerism, reduce this, एक दौड़ की मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, 50 कपड़े चाहिए, 10-20 जूते चाहिए, और ये वो. उसकी बजाय जो आपके पास है उसको एनरिच करके यूज कैसे करना है, उसको भोगिए. तो जो आपके पास है, हमारे पास जो है उसको हम भोगते नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं. नहीं, सही, बिल्कुल. ये देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटजी. ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटजी ऑफ कैपिटलिज्म. क्या है कि देखिए, मार्केट प्लेस जो है पूरा कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करती है. कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा आपकी चीज को, उस पर करती है. इफ कंज्यूमर, सपोज आप जिस कंट्री में आप बेच रहे हैं माल, वहां के जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ गन्ने का रस पीते हैं, नींबू का रस पीते हैं, जो अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स हैं सिर्फ उसी को निचोड़ के उसका रस पीते हैं, और वो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स में बिलीव नहीं करते. बट यू हैव टू प्रमोट योर कोक, हाउ विल यू डू इट?
So globalization, ओके, मैं एडवर्टाइजिंग का ही आदमी हूँ, मार्केटिंग का हूँ, तो मैं समझता हूँ। तो एक यूनिफॉर्म तो ये कॉन्स्पिरेसी हुई कि अगर हम एक यूनिफॉर्म कंज्यूमर बिहेवियर कर दें सारी दुनिया में, जी तो जी जी तो फिर आप चाहे तंजानिया में हो, चाहे आप कोरिया में हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप त्रिपुरा में हो, कोक समझ में आना चाहिए लोगों को कि कोक का बट मतलब हैविंग सेड दैट मैं आपको काट रही हूँ विवेक जी, आप शायद नहीं जानते कि मैं भी कोको कोला में काम कर चुकी हूँ। मैंने करीब 3 साल मैंने कोको कोला इंडिया में इंडिया काम में किया है। इंडिया में जब दोबारा कोका कोला आया था, तो आई वॉज द मेंबर ऑफ द फाउंडिंग टीम, जो 4-5 लोग की ओके टीम जिसने लॉन्च किया कोक को। सो आई डिड रिसर्च ऑन कोक फॉर अबाउट अ ईयर, मोर देन दैट जी एक्चुअली। जी। सो लेकिन वही मुझे थोड़ा ग्लिमर ऑफ होप भी देता है। आपको पता होगा कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कोक इन इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट, स्टिल वन या ऑफ द लोएस्ट इन द या वर्ल्ड, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स मी होप कि ये या नहीं होगा। और या जैसे जापान में कोक नहीं, जापान में उनकी चाय ज्यादा बिकती है, बिकॉज दैट society refuses to have coke, they want to have more of tea, so coke had to launch tea. But having said that, वो मेरी छोटी सी होप है कि अगर कोक को रिजेक्ट कर सकते हैं तो हम काफी हाँ, चीजें रिजेक्ट कर और अभी पाएंगे। कोक के हेडक्वार्टर में जो एजेंसी सारी बैठी हैं, वो लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है। सी, कोक का जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो उनका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, एवरी सिंगल डे दे वुड डिस्कस दिस। तब तो मैं कॉर्पोरेट स्लेव था, तो मैं भी वही सोचता था, वही बात करते थे हम लोग कि किस तरह से ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको खत्म किया जाए। सो देयर फोकस इज नॉट ऑन हाउ टू ग्रो देयर ओन मार्केट, बट इट्स ऑन how to finish that unorganized market so that people consume it anyway. तो मैं क्या कह रहा था कि उसकी थ्योरी क्या है ग्लोबलाइजेशन की, कि कंज्यूमर बिहेवियर शुड बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर। तो आप जी धीरे धीरे सोसाइटी को डम डाउन करते जाइए, डम डाउन करते जाइए, जी और वहां पहुंच जाएंगे। नाउ जैसे इंस्टाग्राम हैज चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, यू नो, एनीथिंग आर्टिफिशियल इज ब्यूटी, यू नो, यू कैन पुट फिल्टर्स एंड लुक ब्यूटीफुल। Twitter has made even idiots look like intelligent people, and intelligent people have backed off. So therefore, it's become a community of अज्ञानी people. That's what I would. मैं भी उसी का पार्ट हूँ, तो आप भी हैं, हम सब हैं। पर सोसाइटी धीरे धीरे, देखिए, सारी दुनिया में लोग आज इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। वी हैव गॉन टू द प्रिमिटिव बेस। जो प्रिमिटिव आदमी था, उसका लैंग्वेज नहीं थी, तो वो ड्राइंग करता था, रॉक पेंटिंग्स करता था, हाथी बनाता था, मछली बनाता था। आज हम वापस इमोजीज में चले गए हैं, यू नो, वी आर अगेन यूजिंग इमोजीज। अच्छा, ये स्माइल है, ये रो रहा है, ये फ्लाइंग किस दे रहा है। सो वी आर स्लोली डम्बिंग डाउन द सोसाइटी। दैट्स व्हाट सिनेमा इन इंडिया डिड टू द सिनेमैटिक आर्ट्स, कि बिकॉज हमारे यहाँ इलिटरेट ऑडियंस ज्यादा सिनेमा देखती थी, तो उनके लेवल पे लाने के लिए वी हैव डम्ब डाउन एवरीथिंग। नाउ पॉलिटिक्स वी हैव डम्ब डाउन, रिलीजन आल्सो वी हैव डम्ब डाउन। आज अगर किसी ने कोई सैफरन कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, तो हम कहते हैं अरे ये साधु है, गुरु है। एक से एक पाखंडी लोगों ने आज पूरा रिलीजन को ओवरटेक कर लिया है। जो स्पिरिचुअल गुरुज बने घूम रहे हैं जब इंडिया में, अरबों करोड़ों रुपए के आश्रम और प्रॉपर्टीज बना बना के, एंड who have millions and millions of followers on social media. I have met them personally. I don't think I've seen more egoistic people than them in this world. They are destroying us. They are if India is going to again, if Hindu civilization dies, I think it's because of this dumbing down of the society by these greedy people who are running the religion and spirituality like a corporate warfare. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, what is the way forward? What are the 3 or 4 most important things we have to correct so that we actually, जिस तरह से जापान ने अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व किया है, एट द सेम टाइम दे हैव बिकम अ कॉर्पोरेट जायंट्स। उन्होंने ज़ेन को, आपको तो पता होगा कि कॉर्पोरेट्स में दे टीच काइजन, ज़ेन एंड ऑल दी स्मॉल इकागाई एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स दे टीच। वहां के जो स्कूल्स हैं, वहां पे द बेसिक ज़ेन फिलॉसफी, दोस चिल्ड्रन नो मोर अबाउट इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी देन एनीबडी इन इंडिया। इंडिया में तो पूछो तो ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि बुद्ध के 6 पाथ्स है कि 7 पाथ्स है कि 8 पाथ है। अरे वो तो छोड़िए, मैंने एक बार आदि शंकराचार्य पे ट्वीट किया था, तो 4 लोगों ने पूछा ये कौन है। हाँ, सही बात है, सही बात है। आप जरा सा कुछ अच्छा लिख दो, किसी पीपल हैव नो नॉलेज, और हर चीज कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। क्यों पढ़े? मैं जानना चाहता हूं आज का जो बच्चा है वो क्यों उपनिषद और पुराण पढ़े,
क्यों नहीं मैं उसको वो बताती वैल्यू सिखाई जाए स्कूल के अंदर, उसे गीता की वैल्यूज क्यों नहीं समझाई जाए, क्यों उससे बोला जाए कि तुम तोते की तरह रट्टा मारते जाओ बस गीता का। तो अ, अ, हाँ, तो विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि, और मैंने खुद भी ये सब पढ़ना पिछले 5-7 साल में शुरू किया है, और फर्स्ट हैंड मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत 700 से ऊपर तो मैंने रिव्यू की हैं, और मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है उसके लिए। माय गॉड। या तो बहुत किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैंने रामचरितमानस से शुरू किया, और अब मैं एक के बाद एक के बाद एक पढ़ती हूँ, और उसका ट्विटर थ्रेड भी बना देती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ट्विटर पे लोग उसको समझेंगे, छोटी छोटी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको, वंस यू रीच अ सर्टेन एज जहां आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, सबको ओरिजिनल में रामायण महाभारत तो पढ़नी ही चाहिए, और पुराण हो सके तो उपनिषद। उपनिषद पढ़ने के लिए आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, कोई अध्यापक चाहिए जो आपको पढ़ाए, लेकिन रामायण महाभारत तो आप कहानियों की तरह पढ़ सकते हैं आराम से, और ओरिजिनल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें इतनी डिस्टॉर्शन हुई है इन द लेटर रीटेलिंग्स कि वो मुझे अनपार्डनेबल लगती है। अब सबको अलग अलग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने रामचरितमानस पढ़ा, और ये मैंने अयोध्या से आने के बाद पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ते गई, अरे इसमें तो लक्ष्मण रेखा का नाम ही नहीं है। तो मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को पूछा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण में नहीं है लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा आई कहाँ से? टू द एक्सटेंट अयोध्या शोध संस्थान को मैंने कहा कि आप इसको ढूंढिए, इस पे शोध करवाइए कि ये कब कहाँ से आया कि लक्ष्मण रेखा खींची गई और बोला गया, जब ये ओरिजिनल में है ही नहीं। इसी तरह आई रिमेम्बर, मैं जब पढ़ रही थी तो मेरी इवनिंग में मेरी एक वॉकिंग पार्टनर है, मेरी फ्रेंड, जिनके साथ हम वॉक करते हैं, तो मैं सुबह पढ़ती थी, शाम को कहानियां उनको सुनाती थी चलते चलते, तो मेरी रिविजन हो जाता था उनका सुनना। तो जब वो भरत मिलाप का प्रसंग आता है, तो उन्होंने मेरे से पूछा, अरे भगवान राम ने अपनी माताओं को देखा होगा विधवा रूप में। तो मैंने वापस जाके पढ़ा, आई सेड ऐसा तो विधवा नाम का शब्द ही नहीं आता है। उसमें हाँ सिर्फ उनके लिए, दशरथ की पत्नियों के लिए 2 ही शब्द यूज किए हैं, या तो रानिया या माता। रानी क्योंकि वो कौशल देश की रानी थी, और माता श्री राम के कॉन्टेक्स्ट में, और तीसरा वर्ड ही नहीं यूज किया है। और ऐसा कोई साइन नहीं है कि वो विधवा हो गई थी तो उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन्होंने ये कर दिया है तो ये विधवा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी बाद में आया है, इसका मतलब तुलसीदास तक ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें, राम राज्य, मैंने राम राज्य पे कितनी जगह भाषण दिया है। मेरा एक यूट्यूब पे एक मैंने वीडियो बना के डाला कि जो राम राज्य की डिस्क्रिप्शन है गोस्वामी तुलसीदास जी की, दैट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इको फॉर एनवायरनमेंट, एंड इट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर। देन ही सेज कि जब आप अपने धर्म आश्रम के हिसाब से बिहेव करते हैं, व्हेन एवरीबॉडी इन द सोसाइटी एक्ट्स एज पर देयर धर्म एंड आश्रम, व्हाटएवर आश्रम यू आर इन, आप गृहस्थ आश्रम में है, आप जिस आश्रम में है, या आपका जो भी काम है, जब आप वो ठीक से करते हैं, तो किस तरह से नदियों का पानी साफ होता है, वायु साफ होती है, पक्षी घूमने लगते हैं, ये होने लगता है, फल अच्छे लगते हैं, एंड द साइकिल गोज ऑन। यू ईट गुड फूड, you create good food, you consume good food, and the quality of life improves for everybody. It's a great framework which people have to pick up. लोग राम राज्य के नाम पे सिर्फ लड़ते रहते हैं, दोनों हाँ तरफ से, पढ़ना किसी ने नहीं है। अगर आप हाँ पढ़ ले, इट इज, you don't need a second model to follow, and it all begins with individual behavior. It doesn't begin with these schemes की इतने करोड़ की स्कीम लाओगे तो राम राज्य आएगा। It ये बिल्कुल begins सही with है। you। मेरा मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है राम राज्य को, कि सब लोग, गांधी जी ने एक्चुअली उस वर्ड को काफी पॉपुलर कर दिया राम राज्य को, उसके पहले इतना जिक्र भी नहीं मिलता उसका। तो उसमें सबको ये लगता है राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एक सरकार आपके लिए क्रिएट कर देगी, या हम जी राम राज्य कोई हमें पहुंचा देगा। लेकिन जी राम जो है, अगर राम राज्य जो तुलसी की अगर बात करें, तो राम तो आपके अंदर है, आप ही राम है। ओके, आप जी, ही वो मर्या आप आपका क्या है, व्हाट इज राम, मतलब आपके अंदर जो राम है, वो जो मर्यादा जो पुरुषोत्तम, रमता है वो राम। तो आप इंडिविजुअल, द फेथ इन इंडिविजुअलिज्म, जो मैं तो आयन रैंड के ऊपर कंपेयर कर सकता हूं उसको, जो जी इंडिविजुअलिज्म जो है, द फेथ इन जी इंडिविजुअल जो है, जिसको आज अमेरिका बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो हमारे से शुरू हुआ एक्चुअली। दूसरा, मैं जी आपसे ये व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये महर्षि सॉरी वाल्मीकि की जो रामायण है, महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, जी उसमें राम को इस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया जिस तरह से तुलसीदास ने किया, क्योंकि तब तक वो भक्ति रस उसमें घुस गया। जी तो जी वो जो है एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप की बुक बन जाती है वाल्मीकि, एंड वाल्मीकि चूंकि
और राम को एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसको उस तरह से व्यक्त भी कर रहे हैं। जी तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। आज वो भक्ति जी पे आया, भक्ति के बाद आज उसका जो रूप है थोड़ा विकृत रूप है। वो जो जी है वो राम हैज बिकम लाइक एक एक शस्त्र बन गया है लोगों के पास कि उस नाम को यूज करके आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया कि राम एक ऐसा वर्ड बन गया, टैबू वर्ड बन गया कि उसके अगेंस्ट बोलना मना है और उसका नाम यूज करके हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से हो गया है। What I'm saying is, what is the way forward as far as domestic travel is concerned? Why people are hesitant? Why everybody wants to go to Goa and jump into the pool? Why hotels in Goa are always booked? Not hotels in Hampi. Hampi में तो होटल ही नहीं है, पहली बात बड़ी समस्या है। खजुराहो में भी एक ही होटल है ढंग का, बाकी सब छोटे मोटे बेकार के होटल है। आपको पता है खजुराहो के लिए फ्लाइट्स नहीं है। Do you know that? You can't reach Khajuraho if you want to go. बनारस के जो थ्रू थी, there were only जी two flights, एक जेट एयरवेज की थी, राइट एक एयर इंडिया की थी। जेट जी एयरवेज बंद हो गया और कोई फ्लाइट नहीं, तो देयर इज ओनली एयर इंडिया फ्लाइट। नाउ एयर इंडिया आल्सो ड्यूरिंग, दे रन इट ओनली ड्यूरिंग सीजन, बाकी टाइम पे वो करते नहीं है। तो आज आपको जाना हो तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसी तरह से आपको जबलपुर जाना हो तो बड़ा मुश्किल है, भेड़ा घाट वगैरह देखना। यू नो जी जी इंडिया बहुत सारी जगहों में है प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी बट what is really surprising is that these hidden gems of India जो अभी भी untouched हैं करप्शन से, जो शिमला और मसूरी नहीं बन गए हैं कि वहां पे सब खड़े होकर गोलगप्पा खा रहे हैं करोल बाग की तरह से, ऐसी जो जगह हैं, जो छोटे हिल स्टेशंस हैं, वहां पे जाने के लिए जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि वहां पे क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, तो ये कैसे पता चलेगा? आपकी भी जो बुक है ये it actually reinforces my faith in this consciousness। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये तभी पता चलती है जब आप हम्पी में चुपचाप 2-3 घंटे किसी पत्थर या रॉक के ऊपर बैठे हैं, वहां जैन टेम्पल्स के पास रॉक पे बैठे हैं, एंड यू सी द होल थिंग। ये कॉन्शियसनेस तब पता चलती है जब मैं खजुराहो गया, सुबह सुबह उठ के 5 बजे पहुंचा वहां मंदिरों में, सुबह जैसी सनराइज हुआ और बैठ के मैंने वहां मेडिटेट किया आधा एक घंटा, उसके बाद वहां बैठा रहा, तब आपको कॉन्शियसनेस समझ में आती है। वो कॉन्शियसनेस जाके काशी के घाटों में फोटो खींच के ट्विटर में डालने से नहीं आती है, वो वहां की गलियों में, वहां की गायों के साथ, पुराने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से आती है। हाउ डू वी इंक्रीज द रियल इंटरेक्शन बिटवीन इंडियंस एंड इंडियन हेरिटेज outside of the selfie and Instagram market? What is the trick? What do we do, the practical solution? See, we'll have to look, our tourism boards have to work on a deep dive tourism. They have to stop glorifying just the infrastructure. You know, it's ironical that I'm saying that because हम सब बोलते रहते हैं infrastructure नहीं है, infrastructure नहीं है. But believe me, infrastructure से the way economy works is कि जब टूरिस्ट पहुंचते हैं तो इकोनॉमी अपने आप आ जाती है। आज गोवा में सीजन के टाइम पे हर घर जो है वो गेस्ट हाउस बन जाता है, तो वो Yeah. अपने आप आ जाता है जब लोग पहुंचते हैं। इनफैक्ट वी नीड टू ब्रिंग इन अ बैलेंस इन आवर टूरिज्म। हमारे पास कुछ 10-20 लोकेशंस हैं जो ओवरलोडेड रहती हैं और बाकी सब ऐसे ही खाली पड़ी रहती हैं। So there's an imbalance, you know, something has to move from these heavily crowded places to places which are absolutely lying empty so that आप जाने वाला एंजॉय भी कर सके। अब दिल्ली से आके गोवा के बीच में सेम भीड़ के साथ आप क्या एंजॉय करते हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है, जबकि मैं गोवा में ही रहती हूँ। तो एक तो हमें ये बैलेंस करने की जरूरत है, और दूसरा मैं आपको गोवा टूरिज्म का एग्जांपल देती हूँ। ये करीब 7 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और 7 साल से मैं सुन रही हूँ कि हमें गोवा का कल्चर ठीक करना है, हिंटरलैंड टूरिज्म प्रमोट करनी है, ये है वो है। खैर मुझे तो वो कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उनसे एक बार, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करें, तो मैंने बोला आप मुझे बताइए, जब आप एयरपोर्ट पे से उतरते हैं और अपने होटल तक जाते हैं आपको क्या दिखाई देता है? सिवाय कसिनोज और लिकर के आपको कुछ भी दिखाई देता है बिलबोर्ड्स पे? आप उतरते ही कसिनो के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं। हाउ विल द टूरिस्ट कम टू नो अबाउट योर हिंटरलैंड टूरिज्म? और मैंने करीब 50 बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं ऑन टेम्पल्स ऑफ गोवा विच आर एंशिएंट. We have one of the oldest observatories here which nobody knows about. I have written about the most ancient stone temples which have even survived the Portuguese era. Some of them have survived, some of them have not. So you
अब टूरिज्म बोर्ड क्या है, दे द इंडस्ट्री ऑल्सो, टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो इंसिडेंटली बीइंग रन बाय पीपल हु आर traditionally travel agents. They are only interested in selling flight tickets and hotel rooms. They only talk in the language, they only talk in the language of कितने रूम बेचने हैं, रूम का साइज क्या है, कितनी फ्लाइट टिकट्स है, मैक्सिमम टैक्सी बुकिंग्स, इसके बियॉन्ड वो नहीं सोचते. दे डोंट इवन थिंक कि टूरिस्ट जगह देखने आता है, आपके होटल में रहने नहीं आता है. होटल इज नीडेड टू सी द डेस्टिनेशन. और अनफॉर्चुनेटली जो बड़े वाले रिजॉर्ट्स हैं हमारे, अभी जो रिजॉर्ट इकोनॉमी आ रही है, दे आर प्रमोटिंग कि अरे आप आ जाइए, आपको तो रिजॉर्ट से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है. तो आई समटाइम्स आस्क पीपल कि भाई अगर आपको रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलना तो अपने घर में रह लो ना, आपके घर से लग्जूरियस जगह तो आपके लिए कोई नहीं हो सकती. बट दैट्स अगेन अ कट पेस्ट थिंग कि अरे मॉलडीव्स की तरह हमारे यहाँ भी रिजॉर्ट्स आ गए हैं तो हमें एंजॉय करना है. वंस इन अ वाइल के लिए कीजिए, लेकिन डेस्टिनेशन से जो इंटरेक्शन है उसकी इच्छा तो टूरिस्ट के मन में ही होनी चाहिए. अब हाँ, आप और मैं कितना भी प्रमोट कर ले, जब तक टूरिस्ट के मन में वो इच्छा नहीं होगी और जब तक वो गलियों में चल के नहीं देखेंगे, तब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं आएगी. इनफैक्ट वन ऑफ द की थिंग्स दैट पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि हम क्या करें, आई सेड यू गो आउट एंड ट्रैवल, डोंट वरी कि वहां कोई क्लिकेबल जगह है नहीं है, जस्ट गो आउट एंड वॉक इन योर ओन बैकयार्ड्स. आप अपने घर से निकल के 4 गली छोड़ के गली में ढूंढ चलेंगे, वहां पे आपको 50 हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स मिल जाएंगे. इंडिया, क्योंकि वी बीन अ लिविंग सिविलाइजेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, आप किसी भी चप्पे पे चले जाइए, आपको कहानियां मिलेंगी ही मिलेंगी. इट डजंट मैटर आप किस में है. कहीं पे आपको थोड़ी बहुत भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी अगर आप संस्कृत हिंदी समझते हैं तो सब चल जाता है काम. आई हैव ट्रैवल्ड इन कांचीपुरम विदाउट नोइंग अ वर्ड ऑफ Tamil for 7 days. I survived without it. Easily conversed and found information. कहने की बात है right. So मुझे एक जो काफी ट्रैवल कंपनी चलाते हैं, तो यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़ी कंपनी भी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि इंडिया में 2 तरह के ट्रैवलर्स हैं. एक तो एक वो है कि मम्मी चलो डैडी बहुत थक गए, चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलो, 2 दिन के लिए चलो. ये तो कहता है एक स्विमिंग पूल ट्रैवलर्स हैं कि वो आते ही साथ जो है बच्चे स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे और जो जेंट्स हैं वो सारे के सारे बार में घुस जाएंगे और दैट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट एंड फिर उनके जो यंग बच्चे हैं वो सेल्फी खींचेंगे. तो उनको जगह से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं है, दे नीड दैट. और दूसरे वो है चेकलिस्ट टूरिस्ट कि भाई जिनको बचपन से उन्होंने सुन रखा है कि भाई ताजमहल तो देखना है एक बार जिंदगी में, एक बार कुतुब मीनार तो देखना है. तो जो चीज हाइप हो गई, मार्केट में पॉपुलर हो गई, वो चीज तो देखनी है, जो फैशन में आ गई. अभी एक गुलमर्ग का चल रहा है फैशन, तो सब गुलमर्ग जा रहे हैं और कुछ नहीं करते. मुझे पता है कोई स्कीइंग तो सीखता नहीं जाके वहां पे, बस फोटो खिंचाते हैं ऐसे कश्मीरी कपड़े पहन के. तो ये बन गया. अभी टेम्पल अगर फेमस हो गए, टेम्पल्स के ऊपर काफी, बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, थोड़ा हिंदू पॉप हिंदुइज्म काफी चल रहा है आजकल, तो चलो टेम्पल. अब टेम्पल के नाम पे क्या है, कौन जाता है? कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे का ट्रैक करके एक एंशिएंट कोई ब्रह्मा का टेम्पल है रेयर, उसमें जाके हिमाचल में जाके वहां देख रहा है, समझ रहा है, वो तो कोई करता नहीं है. तो टेम्पल्स हैव बिकम सच क्राउडेड प्लेसेस. मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी शूटिंग की मैंने उत्तराखंड में, तो मुझे वो जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो बताते थे कि अभी सीजन आएगा 4 धाम का. तो 4 धाम के सीजन में क्या होता है, पूरा जो गेम, क्यों इतने एक्सीडेंट्स होते हैं आप देखिए, हमेशा गाड़ियां लॉरियां टपकती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं. वो उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टू जस्ट टच एंड गो. उनको वो 4 धाम टच करके टर्न अराउंड टाइम अपना बढ़ाना है, कितनी जल्दी वापस आ सकें. एक गाड़ी में आप देखिए 15 20 लोग ठुसे भरे ऐसे करके यूं बैठे रहते हैं और उनमें किसी को मतलब नहीं है केदारनाथ में क्या है, किसी को केदारनाथ से लेना देना नहीं पता. अच्छा, बुढ़े लोग हैं, जवान लोग, बस दे विल गो, छुओ माथा और भागो. दिस इज व्हाट इट हैज बिकम. फास्ट फूड ट्रेवल, फास्ट फूड की तरह से मैकडॉनल्ड टूरिज्म हो गया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है हैबिट्स, ये बचपन में ही इनकलकेट करनी पड़ेंगी और इसमें गवर्नमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. मिडिल क्लास फैमिलीज आर नॉट गोइंग टू डू इट. मिडिल क्लास फैमिलीज वोंट डू इट. गवर्नमेंट विल हैव टू डू इट. दे हैव टू इनकलकेट. पहले देखिए पिकनिक पे जब ले जाते थे
तो वो टीचर्स को भी नॉलेज होती थी जहां ले जा रहे हैं। मैं गया हूं कितनी बार, तो जैसे सांची ले गए हमको, तो वो बुद्धिज्म क्या है, मुझे सब बुद्धिज्म कहां से सीखा मैंने, मेरे फाउंडेशन का ही नाम आई एम बुद्धा है, कहां से, तो मेरे टीचर्स ने बताया मुझे। मैंने भोजपुर की रॉक पेंटिंग्स, मैंने विदिशा की गुफाएं, ये सब हमें, भाई गरीब थे केंद्रीय विद्यालय वाले, तो 100 किलोमीटर की दूरी में ले जाते थे। अब मेरे बच्चे पढ़े हैं बॉम्बे के वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में, और ये लोग जाते हैं प्लेन में, पिकनिक्स में, टूर्स में, एंड दे हैव गॉन टू ऑलमोस्ट एवरी गुड प्लेस ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, पर वो कहां जाते हैं, वो सब रुकते हैं जाके 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में। जयपुर गए, जयपुर से जब बच्चे आते हैं तो दे शो यू 100 सेल्फीज, बट दे नो नथिंग अबाउट जयपुर, क्योंकि वो टीचर्स भी वही कर रहे हैं, यू नो। आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, देयर आर स्कूल्स व्हिच ओनली टेक यू टू स्विट्जरलैंड एंड यूएस। ओ या हम उतने रईस नहीं है, हम, हमारे पास उतना पैसा नहीं, बट एनीवे इट वाज अनुराधा। मैं बताऊं, मैं बहुत कर रहा हूं पॉडकास्ट विद लॉट्स ऑफ ऑथर्स एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग. I am putting it on record that this is one of the most enriching and enlightening. I didn't know that you are such a mine of wisdom and knowledge and balanced person. I think एक बार हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे दूसरे इशू पे ट्रैवल छोड़ के. We'll generally talk about excellence and quality and creativity and way forward. आपने अपनी किताब का जो अंत किया है, आपने लास्ट में कहाँ गया, लेट मी सी, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, पर मुझे याद है आपने 3 चीजों की बात की ऑन द इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर बुक. इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति. और इच्छा ज्ञान शक्ति, शक्ति. ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. आपने इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया, बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ा या सुना कि किसी ने ये बात की हो. वाई? इट मीन्स अगर जब आदमी किताब खत्म करता है तो हमेशा उस चीज पे करता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसके सबकॉन्शियस में. कोई भी राइटर अपनी किताब की जो ओपनिंग लाइन्स है और जो एंडिंग लाइन्स है, लाइक कंक्लूडिंग द बुक, वो क्लाइमैक्स में एक इंप्रेशन छोड़ के जाना चाहता है कोई भी ऑथर. क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करता हूँ सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके सबकॉन्शियस में ये 3 चीजें पक्का चल रही होंगी: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति. मुझे लगता है हमारी इच्छा शक्ति में कमी है. So let's just conclude this show with your words. Why these 3 things? Why have you ended a book on travel with these 3 things? मुझे लगता है हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इच्छा शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हम उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते. मेरी इच्छा नहीं है तो आप मुझे सुबह बेड से नहीं उठा सकते. और उसके बाद जब हमें इच्छा शक्ति हो जाती है तो सबसे पहले हमें ज्ञान इकट्ठा करना होता है, वो करने के लिए जो हमें करना है. और जब ज्ञान आ जाता है उसके बाद हम कर्म करते हैं. तो ये एक सीक्वेंस है. ये एक्चुअली ललिता सहस्त्रनाम में भी ये आता है और हमारे बहुत से ग्रंथों में आता है, बट मैंने ललिता सहस्त्रनाम से लिया है. तो इच्छा शक्ति, ये देवी के 3 रूप बताए गए हैं. तो ये इच्छा शक्ति की कमी मुझे लगता है हम में है. जितनी हमने आज बातें की हैं पिछले इतने मिनटों में, उसमें सबसे अगर आप पूछें कि हमारे में हम एक्सीलेंट क्यों नहीं है, हम क्रिएटिव क्यों नहीं है, हम ऑफ बीट चीजों जगह क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अपने बैकयार्ड में ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हमें उठ के 2000 किलोमीटर ही जाना होता है दिखाने के लिए कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपने शहरों की गलियों में भी ट्रैवल कर सकते हैं. सबके पीछे एक ही कारण है, इच्छा शक्ति की कमी. तो इफ वी आइडेंटिफाई दैट, इच्छा शक्ति आएगी तो हम, ज्ञान शक्ति आज की डेट में बहुत इजी है, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर फिंगर टिप्स. और क्रिया शक्ति उसके बाद अपने आप आ जाएगी करने की. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इच्छा शक्ति पे काम करना है कि हम स्पेशली युवा पीढ़ी के अंदर अगर हम इच्छा शक्ति पैदा कर सकते हैं एक्सीलेंट होने की, क्रिएटिव होने की, इनोवेटिव होने की, so we've sorted out most problems. यहाँ थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. आप जी 1 घंटे में, मैं कोई डिफर नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा थोड़ा अलग है. जी, मेरा ऐसा सोचना है कि इच्छा शक्ति सब में है, राइट. एक्सेलेंस, कोई भी आदमी ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये सोचे कि मैं अच्छा नहीं बनना चाहता, या मैं एक्सीलेंट नहीं बनना चाहता, या सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, या मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता. तो ट्रैवल करने की भी इच्छा सब में है, हेरिटेज को भी रिवाइव करने की सब में इच्छा है, हमको विश्व गुरु बनने की भी इच्छा है पूरे भारत के अंदर, इसलिए लड़ाई चल रही. लेट मी फिनिश माय पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव. और क्रिया शक्ति भी है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो चल के जा नहीं सकता या उस कर्म नहीं कर सकता. प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैसे करें, शायद हमें ये पता ही नहीं है.
आज हमें हेरिटेज रिवाइव करना है, तो ज्ञान के नाम पे आपको ये तमाम हिंदू टेम्पल पे ज्ञान देने वाले लोग सोशल मीडिया पे मिलेंगे, टीचर्स, वो ज्ञान की हमें कमी है। गीता पढ़ने की इच्छा सब में है, और गीता खरीद के भी सब लोग लाते हैं, सबके घरों में गीता मिल भी जाती है, रामायण मिल भी, तो मतलब, और अच्छा गीता के बारे में बोलते भी, लेकिन गीता का जो ज्ञान है वो शायद लोगों के पास नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। हमारे यहाँ मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो हमारे यहाँ तो सब दुनिया की सारी, उन्होंने सारे वेद भी अनुवाद किए, तो बहुत किताबें थी। तो एक हमारे यहाँ एक पड़ोस में कोई रहते थे, बट माय फादर वाज वेरी पजेसिव अबाउट बुक्स। वो किताबें देते नहीं थे लोगों को, क्योंकि लोग ले जाते थे और वापस नहीं करते थे। वापस नहीं फिर बाद में करते। वो कहते थे कि तुम ले तो जाओगे लेकिन पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है ये सब, ये क्या वेद ले जाओगे, पढ़ोगे थोड़ी तुम, पढ़ना तो तुमने मनोहर कहानियां है, तो ये क्यों लेके जाओगे। तो वो थोड़े उस तरह के थे। पर एक सज्जन थे, हमेशा आते थे, उन्होंने कहा कि मेरे को मैं तो इंजीनियरिंग की है, मैंने कभी ये इंडियन टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स वगैरह कुछ पढ़े नहीं है, तो आप हमको डॉक्टर साहब बताइए कि कहाँ से मैं शुरू करूं। तो मेरे पिताजी ने कहा आपने गीता पढ़ी? कहते नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तुम आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको गीता का एक सिंपल अनुवाद दे देता हूँ, बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़िए, तो कम से कम वहां से शुरू करें, वेद तो बाद में आते हैं। तो देखिए उनके अंदर इच्छा शक्ति थी जानने की, और क्रिया शक्ति थी, मतलब वो चल के आए, बातचीत की, लेके भी गए, और जब वो पढ़ के वापस आए एक दिन, कहते इसमें मजा नहीं आया। तो माय फादर सेड क्या? तो कहते नहीं, ये सब तो मैं पहले से ही जानता था, जो इसमें लिखा है गीता में, इसमें कौन सी नई बात ऐसी मेरे को मिली। तो मतलब मेरा ये है कहने का मतलब कि थोड़ा सा हम लोगों को एजुकेशन के लेवल पे अपने बच्चों को करेक्ट ज्ञान जो है हमारा, ये नहीं कि वेद पढ़ो, वेद वेद पढ़ने से कोई हिंदू नहीं बनता है। वेद की नॉलेज क्या है? वेद, आप देखिए कोई हिंदू फिलॉसफी की नॉलेज है तत्वमसी, दाउ आर दैट, तुम्हारे अंदर भगवान है जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, एवरीथिंग एल्स इज मैनिफेस्टेशन। जो हमने कहा पत्थरों में भगवान है, कणों में भगवान है, सो दैट वी लव अवर यूनिवर्स। जो प्रकृति और पुरुषार्थ की जो वननेस है, जब तक that greater part of philosophy we won't tell people, I think our generations are going to suffer. But somewhere I think solution lies in what you are saying, I am saying. So Anuradha, I think it was मैं इच्छा शक्ति पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए जो आपके पिताजी ने बोला, मेरा एग्जैक्टली वही रिएक्शन होता है। मेरे घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी है, और आते हैं लोग, किताबें निकालेंगे, ये हम ले जाते हैं पढ़ने। मैं आपको बताती हूँ, जो असली पढ़ने वाले हैं ना, वो किताब की फोटो ले जाएगा ताकि जाके खरीद के पढ़े। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वही उठाते हैं किताब। और यही फर्क है इच्छा शक्ति में, कि आपकी सच में इच्छा है तो आप, आज की डेट में किताबें हमारे यहाँ इतनी सस्ती हैं कि किताब खरीदने की क्षमता हमारे तबके में तो सबके पास है। और जो इच्छा शक्ति है वो हमारी क्वालिटी ऑफ इच्छा शक्ति है। अब कहते तो हम सारे हैं कि हमको एक फिट बॉडी चाहिए, जिम की मेंबरशिप भी लेते हैं, लेकिन जिसको सही में बॉडी बनानी होती है वो जाके जिम में तेल पेलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी ऑफ इच्छा शक्ति है, हम सब अभी हम आप 10 लोगों को अपने फोन बुक में उठा के कॉल कीजिए कि भैया ये काम है, ये काम करना है, अरे भाई बहुत बिजी है, टाइम नहीं है। शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सबके पास टाइम निकल आता है। कैसे निकल आता है? इच्छा शक्ति से, कि रियली डीप डिजायर जो होती है ना हमारी, कि ये तो मुझे देखना ही है, मैं दुनिया उलट पुलट करके भी ये मैच देखने के लिए समय निकाल लूंगा। तो वो क्वालिटी ऑफ इच्छा शक्ति इज व्हाट आई मेंट, नॉट द परसेप्शन ऑफ इच्छा शक्ति। इनफैक्ट बहुत लोग आते हैं कि आप इतने पैशन से काम करते हैं, हम भी पैशनेट हैं। तो मैं बोलती हूँ 6 महीने 1 साल इस पैशन को टेस्ट करो, कि तुम्हें कोई एक पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी तुम ये काम करोगे। अगर करते रहोगे 1 साल के बाद, तो यू आर रियली पैशनेट, अदरवाइज यू हैव अ परसेप्शन ऑफ बीइंग पैशनेट अबाउट दिस। हम लोग को वाह, क्या, what a delight it's been talking to you, and I wish I had spent more time with you. मैं एक्चुअली बाकी तो बहुत ट्रैवल करता हूँ। गोवा में एक्चुअली आई कम टू गोवा फॉर राइटिंग माय स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब मैं जल्दी आने वाला हूँ वहाँ, इस बार आऊंगा तो वी मस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, यू नो, जो कि ये पॉडकास्ट में हो नहीं सकता है, क्योंकि आई बिलीव इन आई कांटेक्ट। जब तक आंखों का कांटेक्ट नहीं हो, जब तक आपके ऑरास में सिनर्जी नहीं हो, तब तक वो मजा नहीं आता। बट आई डेफिनेटली आई कम वेरेवर यू आर। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
आप ही धीरे धीरे you will become a small intellectual monument of Indian consciousness. And I pray to God that you really bring a lot of wisdom about our heritage. So thank you for joining me. और एक बार जरा एक सेल्फी फोटो आप भी उठाइए. And yeah, in fact, if you want, you can take we'll take a screenshot of this and आपको मैं भेज दूंगा लेके, चिंता मत करिए. आप भेज दीजिए, मैं नहीं ले पा रही हूँ. आप बस इसको ढंग से, हाँ, आप कर नहीं पाएंगे. चलिए. So please read this book by Anuradha, and it's a great book. It's published by Garuda, and Garuda is the same publishing house which published my book Urban Naxals, which became such a big bestseller. So thank you, Anuradha. I'll see you later sometime. Yes. मैं एक सेल्फी लेने की कोशिश करती हूँ, अगर आ गई तो. No, we'll send it to you. We'll send you a good one. मैं आज ही भेज दूंगा आपको, चिंता मत करिए आप. Okay. ठीक है. Okay. चलिए. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Namaste. Okay, friends, so that was Anuradha Goyal, another great mind, a wonderful person who has traveled every nook and corner of India. आप उनको Twitter में follow कर सकते हैं. You can read her book. So, like I tell you every time, I am loving bringing this knowledge to you, जो कि आपको TV channels में, newspapers में, इन सब जगहों पे नहीं मिलेगी. And the reason I am doing it is because I want the young Indians, the younger generation of India, to be enriched. उनको जितनी knowledge मिले वो कम है. लेकिन इसके लिए we spend a lot of time researching, traveling, talking to people, putting lots of things together. और complex research को मैं simple language में आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ. ये काम हमारे I Am Buddha Foundation करती है. अगर आप चाहें तो आप I Am Buddha Foundation में अपनी स्वेच्छा से financially contribute कर सकते हैं, ताकि ये एक धर्म का काम, एक पुण्य का काम लंबे वक्त तक चलता रहे, और ऐसा ना हो कि हम लोगों को आगे जाके इसको कहीं रोकना पड़े. तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I Am Buddha के डिटेल्स नीचे हैं. I am going to soon meet you with another scholar, academic or an author. So good morning, good afternoon, good evening and good night wherever you are. Jai Hind.